Dear students, today I am going to tell you about the ionization methods, and this is part 2 for ionization methods and part 5 for mass spectrometry. Modern methods are atmospheric pressure chemical ionization, electrospray ionization, and matrix assisted laser desorption ionization and other derivative methods. You can see diagrams here, और इन डायग्राम्स को हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे. ये तीनों हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन और APCI का है. ये इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन ESI का है, एंड दिस इज मैट्रिक्स असिस्टेड laser desorption ionization or MALDI method. So let us see more things about these methods. First of all, electro spray ionization. This is called as ESI in short. ESI is the ionization technique that has become the most popular ionization technique. अब आज की डेट में दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक. द इलेक्ट्रो स्प्रे इज क्रिएटेड बाय पुटिंग अ हाई वोल्टेज ऑन अ फ्लो ऑफ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. समटाइम्स दिस इज असिस्टेड बाय अ concurrent flow of gas. The created spray is directed to an opening in the vacuum system of the mass spectrometer, where the droplets are desolvated by a combination of heat, vacuum and acceleration into gas by voltages. Eventually, the ions are ejected from the droplets and accelerated into the mass analyzer by voltages. For larger molecules, the ion may contain multiple charges, allowing the detection of very large molecules on analyzers that have limited mass to charge ratio ranges. Because of the natural use of a flowing liquid, it is easily adapted to liquid chromatography. So this was the basic of electrospray ionization. Now you see here spray needle. This is at 2 to 5 kilovolts. ESI solution है. ये जब इधर से निकलता है तो टेलर कोन टाइप बन जाता है and oxidation takes place. There is a circuit, you can see 2 to 5 kV power supply and spray current is here. करंट यहाँ से निकल रहा है. ओके, एंड नाउ जो सैंपल है उसके सरफेस पे एक्सेस चार्ज है. धीरे धीरे ESI ड्रॉपलेट्स, इलेक्ट्रोस्प्रे ड्रॉपलेट्स बनी, ये डिसॉल्वेट होंगी, मतलब कि इनमें जो भी लिक्विड पार्ट है वो उड़ जाएगा. एंड ये सैंपल जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड फॉर्म में आके देन मास स्पेक्ट्रोमीटर में आगे बढ़ेगा. एंड यहाँ पे ऑरिफिस है, एंड दिस इज़ द मेटल प्लेट एट अराउंड 100 volts. इतने वोल्ट्स पे सॉल्वेंट एंड न्यूट्रलाइज्ड आयंस आर taken care of by these plates, and here reduction is taking place. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे वो रिड्यूस हो रहा है, और न्यूट्रलाइज सॉल्वेंट हटा जा रहा है और न्यूट्रलाइज्ड आयंस को ये वापस भेजा जा रहा है, जबकि पॉजिटिवली चार्ज आयंस को मास स्पेक्ट्रोमीटर में आगे भेज रहे हैं. दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन और ESI. यहाँ पे देखिए, क्रिएटेड स्प्रे इज डायरेक्टेड टू एन ओपनिंग इन द वैक्यूम सिस्टम ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री. यहाँ पे वैक्यूम सिस्टम है, where the droplets are desolvated by combination of heat, vacuum and acceleration into
गैस बाय वोल्टेजेस। इन सारों से डिसॉल्वेशन हो रहा है और न्यूट्रल आयंस को भी हटाया जा रहा है। स्कीमेटिक डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं, इसके बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। द एनालाइट सोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस थ्रू हॉलो नीडल। ये नीडल है, हाई वोल्टेज 2 to 5 kilovolts is applied to the needle. Electric field gradient between ESI needle and counter electrode results in the formation of Taylor cone with an excessive positive charge on its surface. Charge droplets are released from the tip of Taylor cone and evaporate as they travel towards the mass spectrometer inlet to produce analyte ions. So, उसके अलावा इलेक्ट्रो स्प्रे में जो मॉडिफिकेशंस भी हैं वो नैनो स्प्रे, पिको स्प्रे, स्टैटिक नैनो स्प्रे एंड डिसॉर्प्शन इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशंस हैं। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। There are many other techniques that are variations of electrospray. For example, nanospray is a derivative of ESI. That is basically is a low flow version and is highly sensitive because ESI sensitivity is dependent on the concentration, not the amount of sample used. तो ये खास बात है कि concentration क्या है उस पर डिपेंडेंट है, ना कि आप वॉल्यूम्स में आप सैम्पल यूज़ करिए, उससे ESI की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। स्टैटिक नैनो स्प्रे और पिको स्प्रे इज अ सिमिलर डेरिवेटिव बट फ्लो इज क्रिएटेड only the electrostatic spray or a small gas pressure. This allows a few microliters to last over 1 hour. धीरे धीरे ये रिलीज होता है। In addition, a static nanospray has the advantage of less carryover because the needle is disposed of after each sample. हर sample के लिए एक नई needle use होती है। Another simple ionization technique is to spray a surface with ESI spray and have the spray extract ions from the surface into the mass spectrometer. This technique is called desorption electrospray ionization or DESI and produces spectra similar to electrospray but is analyzing the sample on the surface only. आप ये देखिए मेटल का मेटल वायर यूज़ हुआ है। दिस इज पुल ग्रास कैपिलरी है और यहाँ से कोन निकल के आगे MS की ओर जा रहा है। This is also a circuit of these kinds of electro spray technique. फिर ये नेक्स्ट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन और APCI के बारे में हम देखते हैं। APCI method is a method that is typically done using similar source as ESI, but instead of putting a voltage on the spray itself, the voltage is placed on a needle that creates a corona discharge at atmospheric pressure. फर्क क्या है? वोल्टेज स्प्रे पे ना डाल के नीडल पे डाला जाता है और कोरोना डिस्चार्ज होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही है। दिस डिस्चार्ज क्रिएट्स आयंस, इन थेरी मोस्टली H3O plus or water clusters. The sample is injected into the discharge by a spray created by flow of liquid combined with heated gas that volatilizes the sample. डिस्चार्ज से क्या क्रिएट हो रहा है? H3O प्लस और वाटर क्लस्टर्स। द सैम्पल इज इंजेक्टेड, सैम्पल फिर उसमें इंजेक्ट किया जाता है एक डिस्चार्ज के थ्रू, स्प्रे क्रिएट करते हुए लिक्विड प्लस हीटेड गैस से स्प्रे बनाया जाता है और इसकी वजह से वो वाष्पीकृत होता है। द आयंस आर फॉर्म्ड बाय प्रोटॉन ट्रांसफर टू H3O plus or water cluster to the sample.
These ions are then extracted into the same opening vacuum that is used for electrospray. फिर ये आगे मास एनालाइजर की ओर बढ़ता है जहाँ पे वैक्यूम है. Another variation of this technique is atmospheric pressure photoionization, where the initial ionization is performed by photoionization, usually of a dopant that absorbs the light and is added to the water sample. Now इसका डायग्राम देख लीजिए. यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नेबुलाइजर है यहाँ पे, और गैस यहाँ से जा रही है नेबुलाइज्ड. LC यानी कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से सैंपल जा रहा है. ठीक है. अराउंड इस हीट का टेम्परेचर जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड है. ये सॉल्वेंट आयंस मॉलिक्यूल्स हैं. M इज़ फॉर सैंपल. तो M ये हो गया, ये हो गया. और आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनाइज हो रहे हैं, यानी वाटर है तो वो आयनाइज हो रहा है. रिएक्शन विद एनालाइट मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर्स. ये यहाँ पे इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है और ये क्लस्टर बन रहा है. देन डीक्लस्टरिंग. गैस कर्टन है जिसकी वजह से डीक्लस्टरिंग हो रही है और खाली ये जो सैंपल का क्लस्टर है वो आगे जा रहा है MM प्लस. और हियर वैक्यूम है और मास एनालाइजर है. इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि वोल्टेज को स्प्रे में नहीं डाल के नीडल पे डालता है और कोरोना डिस्चार्ज यहाँ से मिलता है. Now, matrix-assisted laser desorption ionization or MALDI. MALDI is a method of ionization in which the sample is bombarded with a laser. The sample is typically mixed with a matrix that absorbs the laser radiation and transfer a proton to the sample. Some small mass samples can be ionized without matrix, but this is typically called laser desorption. Laser is always pulsed and typically in a vacuum. In addition, MALDI mostly forms singularly charged ions. ये एडवांटेज है. Singularly charged ions मिलते हैं इस टेक्निक में. This means MALDI is mostly performed on specially built time-of-flight instruments. Time-of-flight instruments क्या हैं ये हम next के lectures में देखेंगे. One major application of MALDI besides simple analysis is imaging mass spectrometry. ये एडवांटेज है कि इसकी इस टेक्निक की इमेजिंग हो सकती है. Schematic diagram of typical MALDI assisted laser desorption ionization mass spectrometer. Ab analyte is mixed with a matrix solution and solution mixture is dried to form crystals on the sample target plate. अब देखिए यहाँ पे एनालाइट और मैट्रिक्स को मिला दिया गया है, उसको क्रिस्टल फॉर्म में ले आए हैं ड्राई करके, और मेटल टारगेट प्लेट है. ये सैंपल टारगेट और मेटल टारगेट प्लेट भी इन दोनों का मिक्सचर है. The irradiation of crystal mixture by the laser introduces desorption, ionization of analyte that is assisted by a photo-excited matrix. Photo-excited matrix है, एक और desorption हो रहा है और दूसरी ओर आयनाइजेशन भी साइमल्टेनियसली हो रहा है, जो और वहाँ पे photo-excited जो कि लाइट पड़ने से एक्साइट होने वाला मैट्रिक्स है उसकी वजह से हो रहा है. फिर उसे ये दिस इज़ द सोर्स पार्ट. अब इसको एनालाइजर पार्ट में एक्सेलरेट किया जा रहा है. दिस इज़ फ्लाइट ट्यूब, मतलब जहाँ पे उसको मूव करना है. एक्सेलरेशन इज़ ऑफ 19 to 25 किलो वोल्ट्स. और ये लेज़र है, लेज़र से
पल्स्ड लेज़र इस मैट्रिक्स प्लस सैंपल पे के मिक्सचर पे, क्रिस्टलाइज मिक्सचर पे डाला जा रहा है। डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन होके फिर ये आगे बढ़ रहा है और इसकी डिटेक्टर पार्ट में एनालिसिस होगी। बेसिक टाइप्स ऑफ आयन सोर्सेज अब हम समराइज कर रहे हैं। एक है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, दूसरा है केमिकल आयोनाइजेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन एंड मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन मेथड। इतने सोर्स हो सकते हैं और इन मेथड से वोलेटाइल सैंपल्स के लिए इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड यूज़ होता है और केमिकल आयोनाइजेशन मेथड यूज़ होता है। वाइल फॉर नॉन वोलेटाइल सैंपल्स फास्ट एटम बम्बार्डमेंट मेथड यूज़ होता है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन यूज़ होता है और इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन यूज़ किया जाता है। सो दीज वर द methods of ionization of samples to be analyzed through mass spectrometry. Now, this is a summary. You can see many ionization methods are available and each has its own advantages and disadvantages. तो इस summary को भी हम पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, इसमें स्मॉल वोलेटाइल एनालाइट है, जीसी के थ्रू गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड सॉलिड प्रोब के थ्रू सैंपल का इंट्रोडक्शन होता है। मास रेंज जो है 1000 डाल्टन तक होती है। हार्ड मेथड है, वर्सेटाइल है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर इन्फो। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, स्ट्रक्चर पता चल जाता है उसका। केमिकल आयोनाइजेशन, स्मॉल वोलेटाइल सैंपल होता है विच इज़ नोन एज एनालाइट। अगेन जीसी और लिक्विड सॉलिड प्रोब के थ्रू इसका इंट्रोडक्शन होता है। 1000 डाल्टन्स तक मास की रेंज है जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है। सॉफ्ट मेथड मॉलिक्यूलर आयन पीक, M+H होल प्लस, ये सॉफ्ट मेथड था, ये हार्ड मेथड है। फास्ट एटम बम्बार्डमेंट मेथड, इसमें टिपिकल एनालाइट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, बायोमोलिक्यूल्स आ गए, ऑर्गेनोमेटालिक्स, पेप्टाइड्स एंड नॉन वोलेटाइल्स हैं। सैंपल मिक्स्ड इन विस्कस मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देखिए ये मास रेंज बढ़ गया है। दिस इज अगेन सॉफ्ट मेथड, बगैर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, बट हार्डर दैन ESI और माल्डी। हार्डर है किससे, ESI और माल्डी से। अब आया इलेक्ट्रो स्प्रे मेथड। इसमें देखिए प्रोटीन्स के लिए यूज़ हो रहा है, नॉन वोलेटाइल एनालाइट्स के लिए यूज़ हो रहा है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और सीरिंज, जैसे कि अभी हमने सोर्स देखे थे। और यहाँ पे मास का रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 200,000 डाल्टन से। सॉफ्ट मेथड है, आयंस ऑफन मल्टीप्ली चार्ज्ड। अब ये थोड़ा सा है कि आयंस में कई चार्ज हो सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन में क्या होता है, अगेन these are biomolecules, sample mixed in solid matrix, MALDI है इसलिए मैट्रिक्स में मिक्स्ड है, क्रिस्टल बनाएंगे इसको, और वो फोटो एक्टिव मैट्रिक्स है। एंड देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेंज है जिस तक की सैंपल को एनालाइज किया जा सकता है, 500,000 डाल्टन्स। एंड दिस इज सॉफ्ट मेथड, वेरी हाई मास, बहुत हाई मास को ये डिटेक्ट कर सकता है। सो दिस इज द समरी एंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ionization methods. This is the end. So if you like my lecture, please like it, share it and subscribe it, and keep seeing my lectures. Thank you.